Good morning, children. So now I'm going to make you understand the science part. So science, we had the last three pages to complete today of the pressure part. So we had already learnt about contact force and non-contact forces also. Yesterday we had already learnt about all the non-contact forces and pressure just introduced. Today I'm going to make you clear about the pressure. What is pressure? There are so many concepts the pressures are there, but we will be learning the all the high level concepts in the higher classes. But what is exactly pressure and what is the pressure due to atmosphere upon our earth? We will be learning about that today and its applications in our day-to-day life. Pressure means the pressure is defined as force exerted per unit area. Force exerted on the surface per unit area is known as pressure. So it has been discovered by the name by the scientist Pascal. That's why the SI unit is named after him as Pascal. So SI unit of pressure is Pascal, or also so P is equal to F by A, force by area, that is force unit is Newton and area unit is meter square. So we can say Newton per meter square or Newton meter to inverse. Unit of Newton is किलोग्राम मीटर सेकेंड टू इनवर्स. यदि हम लोगों से डालेंगे तो आंसर आएगा ऐसा कुछ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड टू इनवर्स फॉर प्रेशर यूनिट. Unit also I have written some numericals also I'll be sending to you very shortly, those all things. So this is the definition of pressure and it's the SI unit of the pressure. Now comes what is the real life application in our day to day life. So we are coming across the pressure. Pressure के वजह से हमारा बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन है. ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ प्रेशर के साथ, जो कि प्रेशर इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ जुड़ा हुआ है. एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा. ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 3-4 एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू and you can also think in your day-to-day life. So what are the real life application? You please write 5 to 6 and send it to me. First one, you might have seen the peoples, that means blacksmith. He always strikes by the help of hammer on a red hot iron, which is already burnt under the carbon, and so which is already burnt for a long time, and so the blacksmith beats by the help of hammer on the red hot iron to give it a shape. That is a pressure. So pressure exerted due to hammer on the objects. Example of pressure. You might have seen here just to suspend or to hang the watch like a wall watch. What to do? You are also putting one of the nail. Otherwise, the person, the person or the repairing person who comes to your house, you might have seen he is using a driller machine or drills. Then after it puts one screwdriver, then that is used nowadays to hang the watches. Example, they be using the hanger, using the driller machine, otherwise by the help of nail or the hammer you can strike it, and that is also an example of the pressure exerted on the nails. Next example of the pressure is, you might have seen the divers, sea divers. आप लोग देखिए जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर बहुत सारे डाइवर्स, DIVERS डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च वर्क करते रहते हैं. पानी के अंदर भी बहुत सारे ऐसा भी प्लांट्स है और ऐसा भी जानवर है जो कि हम लोग जानते नहीं उनके बारे में, तो उनके बारे में रिसर्च करने के लिए जाते हैं. तो आप लोग देखिए होंगे शायद वो लोग एक कस्ट्यूम, उनका जो मैराइन डाइवर कस्ट्यूम रहता है उसके साथ हो जाते हैं. क्यों जाते हैं वैसे तरह? एंड ऑल्सो सम ऑफ आर टेकिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज व्हेन यू गो डीप इन द सी, then the pressure upon us, the water level rises. As we go deep and deep, the pressure of water upon us rises, and that is more than the blood pressure of our body. That make us that we may vomit blood also from our body, we may die. That's why to balance the air pressure, we use a marine diver's costume, which is made up of plastic coated, glass reinforced and casted with aluminum or plastic. It's made up of like that. So that's another example. So these all are the examples of the pressure, and not only that, this is the pressure due to the water I said. Now pressure due to
This is the pressure exerted due to the water, I said you. Now another example is the pressure due to air also. Let me give the example but showing to you some figures with that. Here are some definitions I have written for you. Give some applications to the pressure. Pressure exerted by the hammer upon the nail. Pressure due to the water, the dams. आप लोग देखोगे जो डैम्स होते हैं उनका बेस इज मोर वाइड होता है. Here is an example you can see children. Left side wall of a dam with its thickness increasing towards the bottom. देखे होंगे शायद आप लोग कभी भी डैम को गए होंगे तो उसका जो बॉटम पार्ट होता है वो बहुत ही वाइड होता है कंपेरिजन टू द टॉप पार्ट, क्योंकि जैसे कि हम लोग नीचे नीचे की तरफ जाते हैं वाटर लेवल का जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है. यदि डैम का वॉल्स नीचे की तरफ और बॉटम की तरफ थिक नहीं होगा तो वॉल उतना प्रेशर संभाल नहीं सकता, टूट जाएगा, तो वहाँ पे बाढ़ भी आ सकते हैं. दैट मीन्स इट मे कॉज फ्लड इफ द थिकनेस ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ द डैम्स आर नॉट मेड थिकर. So that is also to withstand the pressure, they made thicker. For example, there are two bricks I have taken here, which is one is 20 centimeter in the length, breadth 10 centimeter, and height is 5 centimeter. I have kept the brick, one is horizontal, vertically. आप लोग देख सकते हो जैसे कि उसका बेस नीचे की तरफ है, एंड देखिए राइट साइड में जो है शॉर्टेस्ट साइड वर्टिकल मतलब 5 सेंटीमीटर वर्टिकल की तरफ, बेस 20 सेंटीमीटर है. सोचो कौन सा मतलब किस में प्रेशर ज़्यादा रहेगा. जो फर्स्ट वन है लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल मतलब शॉर्टेस्ट साइड इन द ग्राउंड, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर वाला साइड 5 × 10 उसका एरिया होता है, वो नीचे की तरफ है, उसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा. क्योंकि थोड़ा सोचो आप लोग, प्रेशर किस में ज़्यादा होता है, नाइफ व्हिच वन इज शार्पर और नाइफ व्हिच वन इज ब्लंट, व्हिच वन इज शार्पर वी आर हैविंग, मतलब जितना कम एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा ग्राउंड के ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा. इसके ऊपर मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना चाहूँगा. आप लोग देखो, यदि आप लोग चलते हो सैंड के ऊपर तो आपका पाँव अंदर घुस जाता है, आधा हिस्सा लाइक पाँव का आधा हिस्सा अंदर चले जाते हैं, आप लोग ठीक से चल नहीं पाते हो. लेकिन आप लोग यदि सोओगे सैंड्स के ऊपर, जो जहाँ पर रेत है, रेत के ऊपर आप लोग यदि सो जाओगे उसके ऊपर, तो आप लोग देखोगे आपका बॉडी सिंक नहीं हो रहा होगा अंदर. क्यों? क्योंकि टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय योर बॉडी इज लार्जर ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाई यू विल नॉट सिंक. The pressure is less there. Whereas if you are walking, the pressure exerted on the sand is very high because area is very low. area कम होता है इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. दैट इज़ एन एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा. इफ़ यू वर्क ऑन ए नेल, एन आयरन नेल इज देयर, इफ़ यू वर्क ऑन द आयरन नेल, व्हाट विल हैपन, it will strike or it will go into the deep of your feet. पाँव का अंदर घुस जाएगा वो, isn't it? It will be pressed into your feet. But if you sleep on the bed of iron nail, आयरन बेड का पूरा एक आयरन बेड होगा, आयरन नेल का एक बेड होगा, उसके ऊपर जाकर आप लोग सोओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर एक्सर्टेड बाय आयरन नेल एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल, सो इट विल बी लेस फोर्स is applied. That means pressure will be very less and force in that case और एरिया इज़ ऑक्यूपाइड मोर, ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वहाँ पे फोर्स कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा बॉडी के अंदर. सो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर प्रेशर एंड आवर रियल लाइफ एप्लीकेशंस. ये सॉलिड का था, मैं आप लोगों को लिक्विड के बारे में बता दिया. अभी चलो हम लोग एयर के बारे में पढ़ते हैं और गैसेस के बारे में पढ़ते हैं. और एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस होते हैं इंक्रीज इन द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, जो कि दिया गया है. देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर आर 2 होल्स, one at the bottom, another one at the top of the one, and the top one is falling on a horizontal ground, horizontal plane, but it is the lesser height. मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि distance from the bottom of the vessel of the point where the liquid from the hole strikes on the horizontal surface. It is noticed that at the depth of the hole below the free surface the liquid increases and throw of liquid also increases. जितना नीचे जाएंगे उसका थ्रो भी उतना ही दूर तक रहेगा. देन दैट ऑफ द अपर वन, अपर की तरह, अपर होल से भी नीचे का वाला होल और थ्रो मतलब पानी को और दूर तक वो फेंकेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है. नीचे वाला होल के पास प्रेशर ऑफ वाटर कलम इज हाई देयर, दैट्स व्हाई. अनदर एग्जांपल,
दिस इज़ एन हाइड्रोलिक जैक, जिसे हम कार वगैरह हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं पानी की वजह से, पानी का प्रेशर की वजह से। ये भी एक है, हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ए बुक विथ एन एक्सपेरिमेंट के साथ। दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स ने पास्कल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू, द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन द आइडिया अबाउट द प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid। देखिए यहाँ पे जैसे कि in a round bottom flask there are 4 holes visible here with graduated tubes from the 4 sides, but their mouth is ending with different plane. But when you push the piston, then the water fountain column from the jets reaching the same height only, reaching the same height from the initial level of the water, but they are found the fountain of water from the jets reaching the same height. This shows the pressure exerted at the different places in the confined liquid is transmitted equally. This is an example. नेक्स्ट आता है बच्चा हमारा बिकॉज ऑफ एयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द एयर कॉलम ऑन द एटमॉस्फेयर। आप लोग जानते हो, आपके बुक के हिसाब से भी दिखाना चाहूँगा कुछ आपको। देख सकते हो, यू नो दैट देर इज ए एयर all around us. This envelope of air is known as atmosphere, and the pressure due to this atmospheric air on the earth surface is called as the atmospheric pressure। देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम ऑफ एयर दिया गया है। यदि हम लोग हमारे ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, बट हमारा बॉडी का जो प्रेशर होता है, हमारा बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ इक्वल होता है, इसलिए हमें कुछ तकलीफ नहीं होता। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया, एक रॉबर्ट सकर, शायद आप लोग देखे भी होंगे रॉबर्ट सकर। एंड बड़ा बड़ा शॉप्स जहाँ पे सब ग्लास डोर्स होते हैं, वहाँ पे मतलब नेल्स वगैरह, आयरन नेल्स वगैरह वो लोग कहाँ पे भी नहीं डाल सकते। वो लोग क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर रॉबर शक्कर डाल के लगाते हैं। वो हुक रहता है वहाँ पे, उस हुक में बहुत सारे शर्ट्स वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह वो वहाँ पे झुलाते रहते हैं। आप लोग दुखे होगे वो वाला चीज़। एंड घर पे भी किचन जहाँ पे होते हैं, आजकल का डेट में जो घर बनाते हैं हम लोग, घर बनाने के बाद कहाँ पे भी नेल्स नज़र नहीं आते, बहुत सारे रबर शक्कर्स हम लोग लगा देते हैं वहाँ पे किचन वेयर्स रखने के लिए या फिर कोई भी चीज़ रखने के लिए एक हुक्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे बताओ बच्चों। देखो रबर शक्कर में क्या होता है, इन द एक्टिविटी 11.11 एज वेल एज उसका बॉटम पार्ट में लिखा गया है, रॉबर शक्कर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल। आप लोग रॉबर शक्कर लेके जाओगे, उसे वॉल के ऊपर प्रेस करोगे। प्रेस करने से क्या होगा, एंड ये जो रॉबर शक्कर एंड वॉल के बीच जब प्रेस करते हो, जो हवा रहेगा उस होलो सरफेस के अंदर, वो हवा बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आ जाने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो रबर शक्कर है वो लग के रहेगा, कहाँ पे, वॉल के ऊपर लग कर रहेगा। आप लोग कितना भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो वो निकलेगा नहीं। यदि आपका फोर्स सफिशिएंट है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तभी वो निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। यदि हम उसे बोलेंगे रीजनिंग आंसर के लिए, एज अ रबर शक्कर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, एयर बिटवीन द शक्कर एंड वॉल इज फोर्स्ड आउट, creating vacuum between them. The atmosphere pressure of outside holds the rubber sucker with the wall tightly or firmly. So this is the way how we are dealing. Another example भी देना चाहूँगा, शायद आप लोग केरोसिन स्टोव भी दिखे होंगे बच्चों। केरोसिन स्टोव ऑन करने से पहले या फिर चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दिखे होंगे शायद, घर पे भी मम्मी या पापा उसे पंपिंग करते रहते हैं। व्हेन दे पंप इट बाय द हेल्प ऑफ ए लीवर का इज देयर, उसमें भी एक प्लॉन्गर और लीवर रहता है, उसे बोलते हैं, उसे पकड़ के वो लोग पंपिंग करते थे। पंपिंग करने से क्या होता है, जो केरोसिन रहता है उसका प्रेशर अंदर जो रहता है वो प्रेशर उसका बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि लोअर पार्ट प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द आउटसाइड, दैट्स व्हाई केरोसिन फ्रॉम द लोअर साइड रशेस टुवर्ड्स द अपर पार्ट एंड इट बर्न्स। देन इफ़ यू लीड द बर्नर, जो केरोसिन में बर्नर होगा उसे लीड करोगे तभी वो जलेगा। जब केरोसिन का एक छोटा सा मतलब एक नैरो वेसल से, एक छोटा सा ट्यूब से, जेट ट्यूब बोलते हैं उसे, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की वजह से होता है, और एयर प्रेशर भी एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ जो आपका बुक में नहीं है वो बताना चाहूँगा। आप लोग जानते हो
एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे मेजरमेंट किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ barometer. Barometer is used. There are three types of barometer: simple barometer, Fortin's barometer and aneroid barometer. Barometer से हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंड इस बारोमीटर की वजह से ही हम लोगों को मालूम पड़ता है प्रेशर कहाँ पे कितना है. जैसे कि एक बड़ा बड़ा एरोप्लेन्स के अंदर भी अल्टीमीटर होता है जिससे मेजरमेंट किया जाता है हाइट एज वेल एज प्रेशर इन दैट प्लेस. ओके, प्रेशर भी मेजरमेंट किया जाता है. एंड वेदर फोरकास्ट में भी हम लोग प्रेशर को और बैरोमीटर यूज़ करते हैं. जानते हो आप लोग, प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ मालूम पड़ता है. लो प्रेशर बोलते हैं जब हैवी रेन होता है. यदि बैरोमेट्रिक हाइट कम हो जाएगा, सडनली फॉल हो जाएगा, तो हमें माना जाएगा कि प्रेशर बहुत कम हो गया, तो स्टॉर्म और साइक्लोन हो सकता है. सडन चेंज हो जाए, सडन कम हो जाएगा. तो धीरे धीरे से कम होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन बोला जाता है, प्रेशर कम हुआ बोल के. एंड ग्रेजुअल इंक्रीज बढ़ते बढ़ते जाएगा तो उसे ड्राई वेदर बोलेंगे. एंड सडन राइज हो जाएगा तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन को वेरी ड्राई वेदर और एक्सट्रीम ड्राई वेदर बोला जाता है. तो ये सब चीज़ हमारे प्रेशर के साथ भी जुड़ा होता है, रियल लाइफ के साथ. सो प्लीज़ लर्न दिस एंड आई एम सेंडिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो, ओके, फॉर यू. And here is also, did you know वाला एक part है. So Otto von Guericke, a German scientist, he did an experiment by taking two hollow spherical balls and he removed the air from the two hemispherical balls. Then he joined them together and the pressure of the two hollow balls is such that even by the help of so many horses it was being pulled, then also it was not possible to separate the two hemispherical ball. So he did the experiment, horse pull in the hemispheres. And these are the question of that. What have you learned from here and exercise questions? So please fill it, and any doubt if you are having, please ask me that. Okay, I am forwarding this all to you, to your group. Thank you. Have a good day.